106 PP 121 اور 122 سے آزاد امیدواروں کے جیتنے کا معاملہ ہے۔ NA106 سے خالد نواز صدراج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی۔ NA106 سے جنید انوار 1,37,629 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار خالد نواز نے 1,36,924 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار PP 121 سعید احمد سعیدی کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ PP 121 میں امجد علی جاوید نے 58,432 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جبکہ آزاد امیدوار سعید احمد سعیدی نے 58,383 ووٹ حاصل کیے۔ PP 122 سے محمد ایوب گادی کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ آزاد امیدوار خاور شیر نے 71,414 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ لیگی امیدوار محمد ایوب گادی نے صرف 69,687 ووٹ حاصل کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹوبا کے حلقہ NA106 PP 121 اور 122 سے آزاد امیدواروں کے جیتنے کا معاملہ۔ NA106 سے خالد نواز صدراج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی۔ NA106 سے جنید انوار 1,37,629 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار خالد نواز نے 1,36,924 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار PP 121 سعید احمد سعیدی کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ PP 121 میں امجد علی جاوید نے 58,432 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جبکہ آزاد امیدوار سعید احمد سعیدی نے 58,383 ووٹ حاصل کیے۔ PP 122 کی بات کریں، جہاں سے محمد ایوب گادی کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ آزاد امیدوار خاور شیر نے 71,414 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ لیگی امیدوار محمد ایوب گادی نے 69,687 ووٹ حاصل کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام انتخابات 2024 کے حوالے سے، اور ٹوبا کے حلقہ NA106 PP 121 اور 122 سے آزاد امیدواروں کے جیتنے کا معاملہ ہے۔ NA106 سے خالد نواز صدراج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی۔ NA106 سے جنید انوار 1,37,629 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار خالد نواز 1,36,924 ووٹ حاصل کر سکے۔ آزاد امیدوار PP 121 سعید احمد سعیدی کی بھی دوبارہ گنتی کی درخواست۔ عام انتخابات 2024 چنیوٹ کے حلقوں کے نتائج جاری۔ مجموعی طور پر 4,94,058 مرد و خواتین نے حق کی رائے دہی استعمال کیا۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,84,579 تھی۔ ضلع میں 2,83,967 مرد، 2,10,091 خواتین ووٹرز نے حق کی رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا، جبکہ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں خارج شدہ ووٹوں کی تعداد 35,378 رہی۔ قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز کا مجموعی ٹرن آؤٹ 55% سے زائد رہا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو عام انتخابات 2024 چنیوٹ کے حلقوں کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر 4,94,058 مرد و خواتین نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,84,579 تھی۔ ضلع میں 2,83,667 مردوں، 2,10,051 خواتین نے ووٹ دیا۔ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں خارج جو شدہ ووٹ تھے، جو ووٹ ضائع ہو گئے، ان کی تعداد 35,378 رہی، جبکہ قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹرز کا مجموعی ٹرن آؤٹ 55% سے زائد رہا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو عام انتخابات 2024 چنیوٹ کے حلقوں کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر 4,94,058 مرد و خواتین نے حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ قومی اور صوبائی حلقوں کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,84,579 تھی۔ ضلع میں 2,83,667 مردوں، 2,10,091 خواتین ووٹرز نے حق کے رائے دہی استعمال کیا، جبکہ 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں خارج شدہ ووٹوں کی تعداد 35,378 رہی۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا۔ آزاد امیدواروں نے بڑی شکست دے دی۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ مضبوط امیدوار سابق ممبران اسمبلی رانا شعیب ادریس اور میاں طارق جمیل جو ہے وہ بھی اپنی نشست نہ بچا سکے۔ الیکشن 2024 کے نتائج: بڑے بڑے نام شکست سے 2-4، 10 قومی اور صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے متعدد نشستوں پر میدان مار لیا۔ NA100 میں سب سے بڑا اپسیٹ، سابق وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان کو
को 19,593 वोटों की शिकस्त का सामना करना पड़ा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल को साहबजादा हामिद रजा ने 36,093 वोटों से हरा दिया। 6 बार मेंबर कौमी असम्बली रहने वाले नून लीग के रहनुमा अकरम अंसारी को आजाद उम्मीदवार मियां अली सरफराज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सूबाई नशिस्तों पर बड़े लीगी उम्मीदवार राना शुएब अदरीस PP 99 से आजाद उम्मीदवार अहमद मुश्तबा से 13,226 वोट से हार गए। मामू कांजर में पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले नूर शाहिद ने नून लीग के सफदर शाकिर को PP 103 में 7,352 वोट से शिकस्त दे दी। PP 108 से 3 बार मुसलसल सूबाई असम्बली के मेंबर रहने वाले अजमल आसिफ को 3,834 वोट से राना आफ्ताब ने बेछाड़ दिया। PP 113 से नून लीगी राना अली बास को सरदार नदीम सादर डोगर ने 14,000 से हरा दिया। साबिक मेयर फैसलाबाद मलिक रजाक भी अपनी नशिस्त गंवा बैठे। आजाद उम्मीदवार ख्याल कासरू ने मलिक रजाक को 39,161 वोट से शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना शुएब अदरीस और मियां ताहिर जमील भी अपनी नशिस्त ना बचा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, गोचरा में तहरीक लब्बैक की मुकामी क़यादत का मलकावाला चौक में एहतजाज। तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। एहतजाज में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों समेत कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। अपडेट कर रहे हैं आपको, गोजरा में तहरीक लब्बैक की मुकामी क़यादत का मलकावाला चौक में एहतजाज। तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। एहतजाज में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों समेत कारकुनान ने शिरकत की। गोजरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां तहरीक लब्बैक की मुकामी क़यादत का मलकावाला चौक में एहतजाज। तहरीक लब्बैक ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। निगरान हुकूमत की ताजर दोस्त पॉलिसियां, बैनुल अक़वामी ऑर्डर में इजाफा। जनवरी के दौरान बरामदात 26.9% बढ़ी। हुकूमत की ताजर दोस्त पॉलिसियों के बायस मुल्की बरामदात बढ़ गईं। जनवरी 2024 में बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड अदाद-उश-शुमार सामने आ गए। जनवरी में बरामदात 2 अरब 78 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। गुज़िश्ता साल जनवरी में बरामदात 2 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। सनतकार कहते हैं, बरामदात में इजाफे के तसलसल को बरकरार रखने के लिए देरपा पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। पॉलिसियाँ जो हैं वो चूँकि गौर एजाज साहब जो हैं वो हमारे ताजर बरादरी में से हैं, बिजनेसमैन हैं, खुद उनको इन सारी चीज़ों की हौल है, तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेटर पॉलिसीज बनाई हैं जो कि हमारे इस सारे सेक्टर पे असरअंदाज हुई हैं। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम बल्ली कहते हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत बरामदात में 12% का इजाफा हुआ है, जो कि काबिल सताइश है। बैनुल अक़वामी खरीदारों का एतमाद कायम रहना चाहिए। हम बेस ही करते हैं टेक्सटाइल के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर, और जब तक हमारी जो है कंटिन्यूटी नहीं होगी पॉलिसीज में और हमारे टोटल सेक्टर को, टेक्सटाइल को ये साथ नहीं बिठाएंगे, उस वक्त तक शायद ये मुमकिन ना हो। मगर मुझे उम्मीदें वासिक है कि ये सारी चीज़ों को अगर साल दे के आने वाली गवर्नमेंट चलेगी और इस तरह के लोग जो राइट मैन राइट जॉब वाला फलसफा है उसको लेके अगर चलेंगे तो हमारे मुल्क में मजीद बेहतरी आएगी। सनतकारों ने 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जरूरत करार दिया है। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के ताजर फट पड़े। कहा, सस्ते कपड़े पर भी गाहक के साथ घंटों बहस करना पड़ती है। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर फट पड़े। कहते हैं, कहा, सस्ते से सस्ते कपड़े पर भी गाहक के साथ घंटों बहस करना पड़ती है। कपड़ा मार्केट के ताजिर कहते हैं कि हमारे गाहक की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। ऐसे में कारोबार कैसे चलाए जाएं? ताजिर सरापाए सवाल। डेफिनेटली हमें जिस चक्की में धकेल दिया गया है उसमें तो जाहिर बात है कि जिस प्राइस के अंदर हम तो सभी शामिल हैं। इवन डैट के एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक, जवान से लेकर छोटे तक, छोटे से बड़े तक, जितना हजूम जितने लोग इस चैन के अंदर है ना, तो लिहाजा जिस चक्की में हमें झोंक दिया गया है ना, उसमें तो हर मकातबे फिक्र का बंदा ही इफेक्टिव है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो एक गरीब रेडी वाला। ताजरों ने कहा कि निगरान हुकूमत ने जाने से पहले बिजली की कीमत बढ़ाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पेट्रोल 13 रुपए, बिजली 4 रुपए महंगी करके कारोबार की बंदिश पर ठप्पा लगाया गया है। सुबह से शाम तक हाथ पे हाथ रखे ग्राहकों के मुंतजिर रहते हैं। ग्राहक ढूंढने से भी नहीं मिलता। कारोबार जो होते हैं ना, वो हमेशा ही हर हालात में कभी ऊपर और कभी नीचे। ये नहीं होता कि यहाँ पे जब तक कोई पॉलिसी मेकर नहीं ना आएगा तो तब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा। ताजरों का कहना है कि आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। ग्राहक की तरजीह अब कपड़ा नहीं, 2 वक्त की रोटी है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ शिराज बर्ड, सिटी 41 फैसलाबाद।
जदीद टेक्नोलॉजी से लाइल्म मजदूर इंडस्ट्री के लिए सरदर्द बन गए। करोड़ों रुपए की मशीनें, अनाड़ी वर्कर्स के रहमो करम पर सनतकारों ने तरबियत याफ्ता मजदूरों की कमी को लम्हा फ़िक्रिया करार दे दिया। गैर तरबियत याफ्ता मजदूर इंडस्ट्री के मसाइल में इजाफा करने लगे। टेक्सटाइल के सनतकार परेशान, हुकूमत से शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। सदर आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, फैसलाबाद में तरबियत याफ्ता मजदूर की किल्लत में इजाफा हो रहा है। हुकूमती इदारे होने के बावजूद मजदूर का जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ न होना तशवीशनाक है। आप ये देखें, ये वाली जो मशीन है, इसको आप देखें, ये 10-15 दिन से मशीन जो है खुली हुई है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास टेक्निकल स्किल्ड लोग नहीं हैं। कोई इसका बाकायदा तौर पे, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, टेक्सटाइल मशीनरी के इंजीनियर्स होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो नहीं है। सनतकार कहते हैं, हमारी करोड़ों रुपए की मशीनें गैर तरबियत याफ्ता वर्कर के रहमो करम पर हैं। मशीनों के खराब होने पर स्टाफ चाइना से बुलवाना पड़ता है। खराब मशीन चाइना भेजने या तरबियत याफ्ता टीम बुलवाने पर टाइम लगता है, जिससे पैदावार सुस्त हो जाती है। हमें चाइना से वो इंजीनियर आएगा, वो आके यहाँ पे हमारा काम करेगा, तब वो 10 दिन बंद रहे, महीना बंद रहे, 25 दिन बंद रहे मशीन। अगर यहाँ पे हमारे लोग ट्रेंड हों, जितने इम्पोर्टर, हमने उनसे भी ये कहा है कि आप वहाँ से टीम बुलवा के कुछ शॉर्ट कोर्सेज यहाँ पे करवाएं। नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके साथ आप उसका जितना भी तरीकाकार है वो भी यहाँ पे शिफ्ट करें, यहाँ पे कोर्सेज करवाएं। सनतकारों ने टैबटा और दीगर इदारों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग कोर्सेज, टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटिंग कोर्सेज कराने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद।